آمین آمین ہاللویا تشریف رکھیے آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خالوں خداوند دعا دعائیں اور خداوند کی زندگی بخش کلام کو عزت کریں میں آپ کی بھرپور تعلیم مسیح یسوع کے قادر اور بلال نام میں ایک طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ آج اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں اور اس کا جو سلسلہ ہے دعائیں بانی کا ہم نے شروع کیا ہے اور اس کا آج یہ چوتھا پیغام ہے اور اس بات کو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بات جو ہمیں سکھائی اور جب ہم متی کے انجیل 6 باب اس کی 12 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے۔ متی کے انجیل 6 باب 12 جی۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ آمین۔ بائبل مقدس میں اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ قرض کی جو ڈیفینیشن ہے یہ صرف قرض ایک ہی قسم کا نہیں ہے، قرض کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم صرف 2 باتوں پر ہی اس بات کو دیکھیں گے کہ قرض کا جو سلسلہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ قرض روپے کی صورت میں بھی ہے۔ جب بائبل مقدس میں سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس استثنا کی کتاب میں ہمیں اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ قرض جو ہے خروج کی کتاب اور اس کے 22 باب اس کی جب 25 آیت کو پڑھتے ہیں ہاں جی۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح اور تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا اور نہ اس سے سود لینا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یہ قرض جو ہے روپے کی صورت میں ہے، یہ قرضہ روپے کی صورت میں ہے کہ اگر کسی کو تو قرض پیسہ دیتا ہے تو وہ پیسہ جو کسی قرض خواہ کو دیتا ہے اس کے ساتھ قرض خواہ جیسا سلوک نہ کرنا، یعنی اس کے ساتھ بری طرح سے پیش نہ آنا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یعنی یہ ایک ایسا قرض ہے جو روپے پیسے کا قرض ہے، لیکن ایک اور بھی قرض ہے جس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ اور جب ہم شمول کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو شمول کی کتاب ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ایک اور ایسا قرض ہے جس کے تعلق سے بیان کرتی ہے۔ پہلا شمول 2 باب جی اس کی 2 باب کی 20 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا
को खुदावंद तुझको इस औरत से इस औरत से उस कर्ज के इवज में जो उस कर्ज के इवज में जो जो खुदा को दिया गया खुदा को दिया गया नस्ल दे। नस्ल दे। यानी उसने क्या कर दिया था? उसने अपना बेटा खुदा को दिया। एली काइन के पास वो अपना बेटा लेकर आई, उसने उसको अपना बेटा दिया और उसको कहता है कि ये भी तूने अगर खुदा को बेटा दिया है तो ये तूने खुदा पर क्या चढ़ा दिया है? कर्ज चढ़ा दिया है। यदि मैं आपको बता रहा था कि कर्ज की कई कंडीशंस हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ इन दो बातों को ही देखेंगे कि ये औलाद का खुदा के ऊपर, ये औलाद देकर खुदा के ऊपर कर्ज है। वो ये बयान करता है कि तुमने ये कर्ज किस पर लाया है? खुदा पर ये कर्ज चढ़ा दिया है। तुमने खुदा को औलाद दी है। इनका मकसद है कि अगर हम जो कुछ खुदा को देते हैं तो फिर खुदा उसके इवज भी हमें कुछ देता है। और इसने खुदा को एक बेटा देकर खुदा को क्या कर दिया? वो इसके इस बात के मुताबिक यानी खुदा उस औरत का क्या हो गया? कर्जदार हो गया। अब लेकिन खुदा अपने ऊपर कर्ज छोड़ता नहीं। जो खुदा के ऊपर कर्ज चढ़ा देते हैं खुदा उसके इवज और बरकत देता है। क्या दिया? उसके उस कर्ज की बात आगे बढ़ी पड़े। फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने और फिर वो अपने घर गए और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई और और उसके 3 बेटे और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई और 2 बेटियां हुई। कर्ज कितना दिया? एक बेटा दिया कर्ज। और खुदा ने उस कर्ज के एवज उसे कितनी औलाद दी? 3 बेटे 5 बच्चे और दे दिए, 5 गुना दे दिया। यदि खुदा अपने ऊपर अगर हम उसको कुछ लुटा देते हैं तो वो अपने ऊपर कुछ रहने नहीं देता। उसके एवज कुछ ना कुछ है, उसका दुगना तिगना बल्कि यहाँ को 5 गुना करके दिया। एक बेटा दिया, 5 बच्चे खुदा ने दिए। यहाँ पर भी लफ्ज जो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जो उसने बेटा खुदा को दिया, उसके लिए ये यहाँ पर लफ्ज कर्ज आया है। कर्ज की और भी बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन आज हम इसी बात पर ध्यान करेंगे कि कर्ज, और अगर हम दूसरों के कर्ज माफ नहीं करते तो क्या हमारे कर्ज माफ हो जाएंगे? एक शख्स के बारे में बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं। एक ऐसा शख्स है जिसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मत्ती की अंजील को जब पढ़ते हैं इसके 18वां उसकी 23 आयत से पढ़े, 18 की 23 से। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। यानी आसमान की बादशाही जिस के तल्लुक से बाइबल बयान करती है कि उसने भी हिसाब लेना है। आज हम दुनिया में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें इसका हिसाब लेना पड़ेगा। कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, कितना टाइम हम खुदा को दे रहे हैं, कितना वक्त हम दुनियादारी के कामों में जो है वो गुजारते हैं। ये तो हमारा एक ऐसा सफर है जो एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन बाइबल बयान करती है कि ये इसका हिसाब होगा। इसका क्या होगा? हिसाब होगा जी।
बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। हिसाब लेना चाहा। और जब हिसाब लेने लगा जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर और उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया, जिस पर उसके 10,000 तोड़े। अब यहाँ हमें एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसके बारे में बाइबल बयान करती है कि सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया, हाँ जी, जिस पर उसके 10,000 तोड़े। जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। एक ऐसा शख्स है जिस पर उसके 10,000 क्या आते हैं? तोड़े आते हैं। क्योंकि अगर उसने हमें कुछ दुनिया में करने के लिए दिया है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि तुम मेरे गवाह। हर शख्स खुदा की गवाही देने के लिए जमीन पर मुकर्रर है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, इतना तो आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह मर गया, जिंदा हुआ, फिर आसमान पर चला गया। ये एक गवाही है और यही गवाही शागिर्द देते रहे। और ये अगर हम ऐसी गवाही नहीं देते, बहुत ज्यादा गवाही तो कलाम नहीं सुना सकते, इतना तो कह सकते हैं। अगर हम इतना भी नहीं गवाही देते तो भी हम क्या है? मुजरिम है, हमें साथ देना पड़ेगा। और बाइबल बयान करती है कि उसके 10,000 तोड़े आते थे। हाँ जी, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बच्चे ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। सब बेचा जाए। उसके मालिक ने कहा इसके बीवी बच्चे भी बेच दिए जाए, इसका जो कुछ है सब बेच दिया जाए, लेकिन कर्ज वसूल कर दिया जाए। वसूल कर रहा है। लेकिन बेच दो, इसके बच्चे बेच दो, इसके जो कुछ भी इसका सब बेच दो, कर्ज वसूल करो। लेकिन उस शख्स ने क्या कहा? बस उस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया। बस उस नौकर ने गिरकर उसे क्या किया? सजदा किया। सजदा किया। उसने बस वो नौकर उसके आगे गिरा है, सजदा किया है और कहा ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे। ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे। ऐ खुदावंद मुझे क्या दे? मोहलत दे। कि मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे दे दूंगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैं इस कर्ज को जो मेरे ऊपर है, मैं इस कर्ज को दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मोहलत चाहिए। जी, ऐ खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। हाँ जी, उसने कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज जो है वो अदा कर दूंगा। हाँ जी, उस नौकर के मालिक ने उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। और उसका कर्ज भी बख्श दिया। वो गिरा है, उसने सजदा किया है, मिन्नत की है और मालिक उस पर क्या आ गया? तरस आ गया। उसने उस पर तरस खाकर उससे कहा कि चला जा और सारा कर्ज भी क्या कर दिया? मुआफ कर दिया। लेकिन इस शख्स ने क्या किया? आगे इस बात को पढ़ने की वाली है कि जब मालिक ने उसका कर्ज मुआफ कर दिया तो फिर इसका क्या काम था? इसका भी तो यही काम था कि ये क्या करता। हाँ जी, लेकिन इसने किया है। जी, जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से जोर से गहरे गए मेरे पास पकड़कर यहाँ से पकड़ा है, कह लगा मेरा 100 दिनार दे। लेकिन उसके मालिक ने उसका गला घोंटा नहीं, इसने ऐसा किया है कि
کہ اس میں بائبل بیان کرتی ہے اس نے اس کا گلا گھونٹا ہے. اور جب اس نے اس کا گلا گھونٹا تو پھر اس نے کیا کہا؟ جی. اور کہا جو میرا آتا ہے جو میرا آتا ہے ادا کر دے. ادا کر دے. اس نے کہا. اب اس کا طریقہ کار لینے کا بڑا غلط ہے. جب تیرے پر رحم ہوا ہے تو تجھے بھی تو کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اس کا گلا گھونٹا. اس نے کہا جو تیرے اوپر آتا ہے وہ مجھے ادا کر. جی. بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی. اور اس نے بس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی کیا کی ہے؟ اس نے بھی وہی باتیں کہی ہیں. اس نے بھی گر کر اس کے سامنے کیا کی؟ منت کی. اس نے بھی اپنے مالک کے سامنے گر کر منت کی, سجدہ کیا. اور اس بندے نے بھی ایسا ہی کیا ہے. اور اس نے بھی اس سے یہ کیا کہا؟ جی. اور کہا مجھے مہلت دے, میں کہ مجھے مہلت دے, میں تجھے ادا کر. میں تجھے. اس نے بھی کیا مانگی ہے؟ اس نے کیا مانگی تھی؟ اس نے بھی مہلت مانگی تھی. اس نے بھی کیا مانگی ہے؟ اس نے بھی مہلت مانگی ہے کہ مجھے مہلت دے کہ میں تجھے ادا کر دوں گا. لیکن اس بندے نے اس کی ایک نہیں سنی. کیا کہا؟ اس نے نہ مانا. وہ نہ مانا. ہاں جی. بلکہ جا کر اسے کیا کیا؟ قید خانہ میں ڈال دیا. اسے قید خانہ میں ڈال دیا. اس نے 10,000 توڑے آئے تھے, معاف کر دیا. اس نے 100 دینار نہیں چھوڑا. اس کا کتنا معاف ہوا؟ 10,000 توڑے. بائبل کا 10 میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے اوپر 100 دینار تھا. اس نے 100 دینار کے لیے اسے کیا کر دیا؟ قید میں ڈال دیا. اس نے اسے قید میں ڈالا ہے کہ تو جب تک میرے پیسے نہیں دے گا یہاں پڑا رہے. جی. کہ جب تک قرض ادا نہ کرے, جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے. اس نے کہا جب تک پیسے نہیں دے گا تو یہاں پر کیا رہے گا؟ اس نے انصاف کیا؟ اس نے انصاف نہیں کیا. جب تیرے 10,000 معاف ہو گئے ہیں تو تجھے بھی جو ہے یہ 100 دینار کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. معاف کرنا ہے. جی. بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے. اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین. وہ بڑے غمگین ہو گئے. اس کے جو ساتھی تھے وہ یہ حال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے, غمخوار ہو گئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے مالک نے تو اسے معاف کر دیا لیکن اس نے اسے معاف نہیں کیا. اب انہوں نے یہ بات کیا کر اپنے مالک کو بتایا جس نے 10,000 توڑے اسے معاف کر دیا. جی. اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا. سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. جب اس نے ایسا کیا تو اپنے مالک کو جو سب کچھ ہوا تھا بائبل بیان کرتی ہے انہوں نے آ کر اپنے مالک کو یہ بات کیا کر دی؟ سنا دی. یہ بات اس کو سنا دی کہ یہ اس نوکر نے جو ہے اپنے ہم ایک نوکر کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وہ اپنا وقت بھول گیا کہ میرے مالک میرے اوپر فیصلہ تھا اور میرے مالک نے کیا کیا ہے. اب لیکن اس نے اس پر رحم نہ کیا تو اس کے مالک کو بتایا گیا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جی. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر ہاں جی. اس سے کہا. اس پر اس کے مالک نے اسے پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر, اے شریر نوکر, میں نے وہ سارا تو نے میری منت کی, میرے سامنے گر گیا, جھک گیا اور میں نے تیرا سارا قرض معاف کر دیا اور تو نے 100 دینار نہیں چھوڑا. 100 دینار کے لیے تو نے اسے قید میں ڈال دیا. جی. اس نے کہا اے شریر نوکر,
मैंने वो सारा कर्ज तुझे मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया इसलिए बख्श दिया। कि तूने मेरी मिन्नत की। उसने कहा मैंने तो तेरा कर्ज इसलिए बख्श दिया था कि तूने मेरी क्या की थी, मिन्नत की थी। मैंने सारा कर्ज बख्श दिया। आज जब उसने तेरी मदद की अब तूने क्यों नहीं उसे बख्शा? अब जब उसने ऐसा किया तो फिर बाइबल बयान करती है जी, क्या तुझे लाजिम ना था तुझे लाजम ना था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम जैसे मैंने तुझ पर रहम किया है तू भी अपने हम खिदमत पर रहम तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। उसने कहा मैंने तुझ पर क्या किया, रहम किया। तुझे भी लाजम था कि तू भी अपने हम खिदमत पर क्या करता, रहम करता, कि तूने रहम नहीं किया। आज भी इसी बात को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि फिर उसी साल क्या हुआ जी। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाले और उसको जलादों के हवाले कर दिया। अब उसने उसका कर्जा जो उसने ऐसा शुरू किया तो उसका कर्जा बहाल हो गया। जो माफ था उसने कहा इसका माल ये माफी के लायक नहीं, ये बता माफी के लायक नहीं है। उसने जलादों के हवाले कर दिया और क्या कहा कि जब तक तमाम कर्ज अदा जब तक ये तमाम कर्ज अदा ना करे कैद रहे। उसने उसे क्या किया था, कैद कर दिया। और इसके साथ भी फिर क्या हुआ, इसके साथ भी क्या हुआ है, इसके साथ भी वही हुआ जो इसने किया था, जो इसने किया था। इसने उसका कर्ज माफ ना किया तो फिर इसका कर्ज भी माफ किया हुआ भी फिर बहाल हो गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, दूसरों को ऐसा नहीं करते तो फिर ये हमारे साथ फिर वैसा ही चलता है जैसा हम करते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ हो जाएगा। नहीं कर्ज माफ न किया और उसका भी कर्ज क्या हुआ है, माफ ना हुआ। लूका की इंजील में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात लिखी है कि यहां क्या हुआ, जी 4 लाइन से पढ़े हमारे गुनाह माफ, 11 बात की हमारे गुनाह माफ कर और हमारे गुनाह माफ और हमारे गुनाह माफ कर क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को माफ क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। हमारे कर्ज क्या कर माफ कर क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को क्या करते हैं, माफ करते हैं। अब उस शख्स ने उसके गुनाह माफ नहीं किए, उसका कर्ज माफ नहीं किया, तो उसने कहा तू भी हमारे कर्ज में क्या कर, माफ। बाइबल मुकद्दस अगर हम किसी के गुनाह या कसूर या कर्ज माफ नहीं करती तो क्या हम इस बात पर उम्मीद रख सकते हैं कि खुदा भी हमारे गुनाह माफ करेगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम किसी के गुनाह माफ नहीं करते तो फिर हम अपने गुनाहगार पर जो है वो कैसे तस्वर कर सकते हैं कि हमारे माफ हो जाएंगे। जब मत्ती की इंजील को फिर वहीं पर आया 6 बाब की 14 आयत पढ़ते हैं। छह बाब 14 है। और हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। नहीं 6 की मत्ती के इंजील 6 बाब 14 है। इसलिए अगर तुम
इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर क्या करेगा? माफ करेगा। आदमियों के कसूर माफ करना अब तो ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, तो मतलब मेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब हम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करते तो फिर हमारे कसूर, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे? हो जाएंगे? ये तो नामुमकिन है। जब हम दूसरों के गुनाह माफ करेंगे तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका सबूत बाइबल मुकद्दस में भी हम आगे देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़े थी तरह इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं। कसूर अगर कोई मन्नत करता है तो उसके कसूरों को माफ करना जरूरी है कि उसके कसूर क्या कर दिए जाए? माफ कर दिए जाए। अब बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने ये तालीम हमें दी और फिर ना सिर्फ तालीम दी बल्कि अमल करके दिखाया। बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को सलीब दिया गया, हाथ और पांव में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया और यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप ने क्या कहा? ना सिर्फ यीशु मसीह ने तालीम दी बल्कि उस पर अमल किया करके हमें दिखाया है। उसने उस बात की ना सिर्फ तालीम दी बल्कि उसे साबित किया है। उसको बिल्कुल यीशु जी ने अगर ये ना सिर्फ तालीम दी है बल्कि पूरे कर दिखाया कि ऐ बाप ने माफ करके ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। आज हमें एक शटना मार दे तो शायद हम वो भी बर्दाश्त नहीं कि तो हाथ और पांव में कील ठोके गए हैं और उसने माफ किया है। ये हमें दर्श दिया है कि ये अगर मैंने ऐसा किया है तो अगर तुम मेरे पैरोकार हो, मेरे फॉलोअर हो, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम्हें भी मेरे दूसरों को क्या करना है? माफ करना होगा। और इस बात को हम जानते हैं कि शागिर्दों ने भी यीशु मसीह को फॉलो किया क्योंकि वो फॉलोअर थे। बाइबल मुकद्दस में इस बात को जब हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं तो अमाल की किताब में एक डीकन जिसका नाम अस्तिफनस था और ये कलीसिया का पहला शहीद है। अस्तिफनस के तरफ से बाइबल बयान करती है कि वो खुदा का कलाम सुना रहा था और उसे घसीट कर शहर से बाहर ले गए और उसे संसार करने लगे। क्या करने लगे? संसार किया है, पत्थरों से मारा है। और जब कोई किसी के साथ ऐसा सलूक करता है तो आप समझते हैं कि वो कोई आराम से नहीं मारता हो। उन्होंने उसको संसार किया शहर से बाहर और वो संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि अस्तिफनस को जो है उसने घुटने टेक कर कहा, आए खुदावन मेरी रूह को कबूल फरमा और ये गुनाह इनके ज़ुम्मे ना गया। शायद ऐसा बंदा कम ही मिलता हो।
जो इतनी उसे संसार कर रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं, लेकिन उसने यीशु मसीह का पैरोकार होने का सबूत दे दिया है, सबूत दिया, ने देखा था कि मेरा हमारे खुदावंद ने कैसे माफ किया है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि दूसरों को क्या करें, माफ करें। उसने उसको अपने संसार करने वालों के लिए कहा ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। ये है वसीयत। वसीयत के अंदर बदला नहीं है, मुआफ करना है, बदला खुदा ने लेना है। अगर आप किसी से खुद ही बदला ले लेते हैं तो फिर खुदा से क्या लेगा? खुदा बदला लेगा? फिर तो नहीं लेगा, क्योंकि आप बदला तो आपने खुद ले लिया है। और ये काम, हमारा काम खुदा के हाथ में अपना मुकदमा दे देना है, और जब हम अपना मुकदमा उसके हाथ में देंगे तो फिर वो हमारा इंसाफ खुद करेगा, क्योंकि वो मुनसफ है, क्योंकि वो मुनसफ है और वो इंसाफ करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा जो है हमारे भी गुनाहों को माफ करे, तो फिर हमें इस तरह शागिर्दों की तरह उनके गुनाहों को माफ करना है। यानी हम मसीही हैं, और मसीहियों का यही काम होना चाहिए कि दूसरों से बदला न लें, बल्कि दूसरों को माफ करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की यही तालीम है कि दूसरों को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक बहन, उसका बेटे की किसी के साथ लड़ाई हुई, उसके बच्चे जो जिसके साथ लड़ाई करके उनके बच्चे उस बच्चे को मारते, वो अकेला था और वो मार रहे थे, और जब वो उसे मार रहे थे तो उसकी मां बड़ी खुदा परस्त औरत थी। खुदा परस्त कहलवाना हो रहा है और फिर उस बात पर अमल करना ये कुछ और है। और उसने जब अपने बेटे को पिटते हुए देखा तो उसे छुड़ाने के लिए उसके पास गई, और जो जिसके बेटे उसको औरत के बेटे उस लड़के को मार रहे थे, उसने जब ये देखा कि ये मेरे बेटे को शायद मारने के लिए आ रही है, वो औरत गई, उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, और उस औरत ने उसे कुछ नहीं कहा कि मुझे तूने क्यों थप्पड़ मारा है। और उस औरत ने क्या कहा, ये रे बहन, ये दूसरी गाल पे भी मार ले, ये दूसरी गाल पे भी मार ले। आज इतने अल्फाज कहने की जरूरत देर थी, और फिर बाइबल बयान करती है, वो वाकया बयान करते हैं कि वो औरत उसके कदमों पर गिर गई, जिसने थप्पड़ मारा था उसके पांव पकड़ लिए दोनों, कह लगी बहन मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई। बाइबल की तालीम को जब फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको हाथों हाथ में जाता है, लेकिन हम बाइबल की तालीम को फॉलो करना छोड़ देते हैं। हम तो दिल में किसी के लिए हसद, किसी को दूसरे को निशान नहीं समझते। यानी यूं तो हम यीशु के फॉलोअर हैं, लेकिन बहुत उस तालीम से दूर जा चुके हैं, दूसरों को माफ नहीं करते। तो इसलिए हमें दूसरों को क्या करना है, मुआवजा। जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कर्ज क्या कर, माफ कर। जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, वो भी हमारे कसूर माफ करेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो भी हमारे कसूर माफ नहीं करेगा। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको